Hello everyone, welcome to the platform of LPT. Today we are on a different agenda. We are doing the questions, the most expected questions for symbiosis entrance test in this session, as it is also near. So what we would be doing questions almost from every topic. I would be delivering some basics of that topic as well if required. And in this way, we would be building the speed, accuracy across majority of the topics. Uh, okay, so let's move on with the first question of the day. And here it is. A basic problem from percentages. The price of laptop is increased by 25% and later decreased by 20%. What is the net percentage change in its price? एक प्राइस पहले 25% बढ़ जाता है, बाद में 20% कम हो जाता है. व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज? देयर आर 2-3 ways of doing it. First is net percentage change. Net percentage change is a plus b plus a into b upon 100 percentage when everything is given in the percentage. जब हर एक बात परसेंटेज में दे रखी हो तो आप डायरेक्ट वैल्यूज भी पुट कर सकते हो. So with the sign, so increasing by 25%, so A is plus 25. Then it is decreasing by 20%, so B is minus 20. A plus 25, B minus 20 divided by 100. Answer will directly come in the percentage. Answer will directly come in the percentage. 5 minus 5. 5 minus 5, that is 0%, no change. What is the correct answer here? The correct answer is no change. कोई बदलाव नहीं होगा. When you increase the price first by 25% and then decrease it by 20%, eventually no change will happen. एक और तरीका, that is 100. तो पहले 100 पर 25% का राइज, सो वैल्यू हो गई 125. और अब जो होगा, अब जो 20% का डिक्रीज होगा वो 125 पर होगा. So what is 20% of 125? Sir, it is 1 by 5 of 125. Again 25 का decrease. So value have again 100. 100 से value 125 गई और फिर वापस 100 हो गई. So what is the answer you have to mark? 5%, ना कि 0%, ना कि 5%. हमको ऐसा लगता है ना कि अच्छा 25% बढ़ी है फिर 20% कम हुई है, इसका मतलब 5% अभी भी इंक्रीज रही होगी. नो, चेंज ऑफ बेस. पहला 20% 100 वैल्यू पर निकाला गया और बाद वाला जो 20% था वो इंक्रीज्ड वैल्यू पर निकाला गया और दे हैव कंपनसेटेड देमसेल्फ. उन्होंने एक दूसरे को नलिफाई कर दिया, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया. इसलिए आंसर होगा नो चेंज, 0%. नेक्स्ट. A shopkeeper marks his good 40% above the cost price and allows a discount of 25%. What is his profit percent? जब भी CP, MP, प्रॉफिट, डिस्काउंट की बात की जाए, दिस इज अ मैजिकल फॉर्मूला जो आपको फटाफट से आंसर दे देगा विदाउट डूइंग एनीथिंग. CP over MP is 100 minus discount percent, 100 plus minus profit percent. CP के सामने 100 minus discount आता है, MP के सामने 100 plus minus profit आता है. तो उसने अपने गुड्स को 40% अबव मार्क किया है. तो व्हाट यू विल डू, आप कहेंगे अगर CP 100 है तो MP 140, CP 100 है तो MP 140. डिस्काउंट 25% का दिया गया है, 100 माइनस 25. प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन, लॉस हुआ है तो नेगेटिव साइन. आई थिंक प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट पूछा गया है बेसिकली, तो 100 प्लस पी. इसे सिंप्लीफाई कर लो. दिस इज 5/7. दिस इज 75/100 प्लस पी. 15 टाइम्स सिंप्लीफाई होता. 15 7 जब 105 is equal to 100 plus P. Profit comes out to be 5%. It's a good way, or
बहुत सारी प्रॉब्लम में ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट काम आ जाता है। आप याद रखो इस फॉर्मूले को कि whenever CP, SP, MP, डिस्काउंट, प्रॉफिट, एवरीथिंग इज इन द सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में ये सारे पैरामीटर दे रखे हों, तो दिस इज अ गुड फॉर्मूला जो हमें एक इक्वेशन लिखने पर, एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने पर ही डायरेक्ट आंसर दे देता है ना। सो मल्टीपल थिंग्स आर कमिंग इन द क्वेश्चन, CP, SP, MP, profit percent, discount percent. Do think about it. Okay, let's move on. A sum of money double itself in 8 years at a simple interest. What is the rate of interest per annum? एक मनी अपने आप को 8 साल में डबल कर लेती है SI पर, क्या रेट होगी? तो दो तीन तरीके हैं। डबल करने का मतलब P से 2P हो जाना, P का प्रिंसिपल 2P का अमाउंट बन जाना, इसका मतलब P का इंटरेस्ट मिल जाना। अगर P का प्रिंसिपल 2P का अमाउंट बन रहा है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ही तो अमाउंट होता है, तो P के प्रिंसिपल पर कितना इंटरेस्ट मिला होगा कि वो 2P बन गया? P इंटरेस्ट सर। सो P का इंटरेस्ट P के ऊपर वी कैन कॉल इट एज 100% इंटरेस्ट एज वेल। हम इसको 100% इंटरेस्ट भी कह सकते हैं कि सर P पर P का इंटरेस्ट 100% इंटरेस्ट कितने सालों में? 8 सालों में, क्योंकि SI तो हर साल बराबर होता है। तो अगर 100% 8 सालों में, तो पर ईयर, एवरी ईयर इट इज 12.5%। या तो ऐसे आंसर करो या फिर कैसे करोगे, वही SI इज इक्वल टू PRT वाला फॉर्मूला लगा के कि सर P का इंटरेस्ट, P का प्रिंसिपल, रेट बतानी है, टाइम पता है, सो रेट कम्स आउट टू बी 12.5%। SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 यूज करो, या फिर डायरेक्टली सोच लो कि P का इंटरेस्ट P के प्रिंसिपल पर इज अ 100% इंटरेस्ट, 100% इंटरेस्ट इन 8 years, बिकॉज ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो एवरी ईयर इट इज 100 by 8, 12.5%, इट इज 12.5%। क्लियर? नेक्स्ट देखो भाई, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। कुछ नहीं करना आपको, बस देखते जाओ और इसी लाइंस पर प्रैक्टिस करते जाओ, है ना। यू नॉट, मतलब व्हेन वी विल कंडक्ट मोर सच सेशंस देन यू विल नॉट गेट टू नो कि यार बस इसी के आसपास के क्वेश्चंस करने हैं। एंड इवन वी एज अ टीम विल आल्सो ब्रिंग लॉट ऑफ सच सेशंस टू यू, जहां पर हम बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको SAT के लिए करवा देंगे। A/B पता है, B/C पता है, A/B/C बताना है। दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहले ABC लिख लो, फर्स्ट रो में फर्स्ट रो में A/B डाला, सेकंड रेशो में B/C डाला, फर्स्ट रो में A/B, सेकंड रो में B/C। ABC बताना है, ABC बताना है, C की वैल्यू आपके लास्ट वाली दोनों का मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, B की वैल्यू उसके नीचे वाली दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करके आ जाएगी, और A की वैल्यू दोनों के इधर LHS वाले जो वैल्यूज हैं, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज का मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगी 8, 12, 15। तो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये एक रिवर्स एन बनता है ना। सो अगर आप इसे डायग्रामेटिकली करना चाहते हैं तो रिवर्स एन बनेगा। A/B डाल दो, B/C डाल दो, देन लाइक एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई से C आ जाएगा, इधर वाले एक्सट्रीम्स के मल्टीप्लाई से A आ जाएगा, और जिसके नीचे दो वैल्यू लिखी हैं उन दोनों के मल्टीप्लाई से B आ जाएगा। और सर बेसिक में कैसे करते थे? बेसिक में ऐसे करते थे, A/B 2/3, B/C 4/5। दोनों रेशो में ये पहचानो कि व्हाट इज द, दोनों रेशो में ये पहचानो कि कनेक्टिंग लिंक क्या है। तो आपने कहा सर B इज द कनेक्टिंग लिंक बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन बोथ द रेशोज। अब देखो क्या इसकी वैल्यू सेम है? नहीं सर, अलग अलग है, एक जगह 3, एक जगह 4, तो वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। रेशियोज में मल्टीप्लाइड अलाउड होते हैं, तो आपने ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 बनाने के लिए,
यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 12 बनाने के लिए, रेशियोज बैलेंस हो गए 8 12 12 15, सो A is 8, B is 12, C is 15. Either you do this way or you do this way, both are good ways, है ना, जैसे करना है वैसे कर लो, no issues. Next, the average age of a class of 20 student is 15 year. If teacher's age is included, the average age increased by 1. What is the age of teacher? ठीक है, आपको पता है एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो अगर कभी सम निकालना हो तो इट कैन बी फाइंड आउट बाय मल्टीप्लाइंग एवरेज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ एवरेज पता था तो मैं सम भी निकाल सकता था. तो इसको मैं कहूंगा एवरेज इनिशियल A1N1, इनिशियल एवरेज इनिशियल नंबर, इनिशियल एवरेज इनिशियल नंबर. तो 15 का एवरेज 20 स्टूडेंट, तो टोटल सम इनिशियली 300 था. इनिशियली सम कितना था? 300. अब टीचर भाई साहब आ गए, है ना, टीचर आ गए. अब तो टीचर आने से एवरेज भी बदल जाएगा और नंबर भी बदल जाएगा. तो शुड बी इक्वल टू A2N2. तो टीचर की एज को आपने T लिया और अब एवरेज हो गया है इंक्रीज बाय 1. इंक्रीज बाय 1 का मतलब 15 से 16, 15 से 16, और नंबर भी बढ़ गए हैं बिकॉज इनिशियली देयर वाज 20 स्टूडेंट एंड नाउ इंक्लूडिंग टीचर इट इज 21. तो टीचर एज कम्स आउट टू बी it is 320 plus 320 plus 16, 336 minus 300, 36 years. A1N1 plus new value is equal to A2N2. A1N1 plus new value is equal to A2N2. अब देखो एक और, ये तो मतलब बेसिक है, अगर कुछ क्लिक ना करे तो ये है. और बेसिक कैसे होगा और आसान कैसे कर सकते हैं? ऐसा क्या कर सकते हैं कि कुछ भी ना करना पड़े, डायरेक्ट आंसर मार्क हो जाए? देयर आर दोज वेज एज वेल. वो क्या है देखते हैं जरा. 20 लोग थे, उनकी एज 15 थी. फिर एक बंदा आया, टीचर आए, और उसकी वजह से सबका एवरेज एक 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 बढ़ गया. तो आप कहोगे सर 15 से सबका एवरेज, अच्छा 15 एवरेज होने का मतलब सबके पास 15 रुपए थे, या फिर 15 एज थी, और अब 16 एज होने का मतलब सबके पास 16 है. तो कितने लोगों का एक एक का फायदा हुआ? सर 20 लोग जो पहले थे और एक टीचर, तो 21 लोगों का एक एक का फायदा हुआ है. टीचर के आने से, टीचर के आने से 21 लोगों को एक एक वैल्यू ज्यादा मिल गई. पहले तो 20 लोग तो 15 थे ही, अब टीचर को भी अगर काउंट कर लिया जाए तो उसके आने से 16 एवरेज हो गया 21 लोगों का. इसका मतलब 21 लोगों पर एक एक का इंक्रीज हुआ है. तो 21 लोगों पर एक एक का इंक्रीज मतलब 21 ज्यादा लेके आया है भाई टीचर एज. आपके प्रीवियस एवरेज से, आपके प्रीवियस एवरेज से टीचर 21 एज ज्यादा लेके आया, इसलिए तो आप सब में एक एक को डिस्ट्रीब्यूट कर पाया. तो टीचर की एज इज, टीचर की एज इज इनिशियल एवरेज प्लस वॉट एवर इट इज ब्रिंग आउट एक्स्ट्रा. ऐसे भी कर सकते थे. इनिशियल एवरेज हमारा 15 होता था और टीचर के आने से 21 लोगों का एक एक का फायदा हुआ. तो 21 into 1, 15 plus 21, 36 is the correct answer of it. A pipe can fill a tank in 10 hours. तो एक पाइप टैंक को 10 घंटे में भर देता है. पाइप बी कैन एम्प्टी, जो खाली कर रहा है उस पर नेगेटिव लगा लो 15 घंटे. टैंक की कैपेसिटी ले लो, इन दोनों का एलसीएम 30 लीटर. फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी +3, एम्प्टिंग पाइप की -2. आई होप आप ये सब समझ गए होगे मैंने कैसे किया. 30 डिवाइड बाय 10 +3, 30 डिवाइड बाय 15 -2. दोनों को एक साथ खोला जाए तो टैंक कितनी देर में फुल होगा? दोनों की एक साथ एफिशिएंसी है +3 -2 मींस +1 लीटर पर आवर.
सो 30 लीटर का टैंक प्लस 1 लीटर पर आवर की एफिशिएंसी से भरने में 30 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे भाई? 30 घंटे लग जाएंगे। 30 आवर्स इट इज गोइंग टू टेक। नेक्स्ट, a train 150 long meter crosses a pole in 9 seconds. What is the speed of the train in kilometer per hour? एक ट्रेन का पोल को क्रॉस करना मतलब खुद की लेंथ को क्रॉस करना। एक ट्रेन का पोल को क्रॉस करना मतलब, बिकॉज पोल की जो विथ है वो ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लेक्जिबल है, तो पोल को क्रॉस करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं चलना पड़ रहा है। बेसिकली उसको सिर्फ अपनी लेंथ क्रॉस करनी है। तो याद रखेंगे आप आज के बाद कि पोल को क्रॉस करना मतलब खुद की लेंथ क्रॉस करना। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? इट्स ओन लेंथ। स्पीड तो भाई खुद की ही होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन, टाइम भी लगेगा ही। तो अपनी लेंथ को क्रॉस करना है, अपनी खुद की स्पीड से देखते हैं कितना टाइम लगेगा। 150 मीटर की लंबी ट्रेन थी, 9 सेकंड में क्रॉस किया, तो स्पीड ऑफ ट्रेन आ गई 150/9 मीटर पर सेकंड। वो यूनिट कन्वर्जन के लिए करवाया है ये क्वेश्चन 3, और ये 50/3 मीटर पर सेकंड। 50/3 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो 18/5 से मल्टीप्लाई करके। 18/5 का मल्टीप्लाई करके किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। क्या सीखना है इस क्वेश्चन से? सिर्फ ये नहीं सीख के जाना कि इतना आसान था, ये भी सीख के जाना है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 18/5, और किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। अगर कभी भूल जाओ कि 18/5 है कि 5/18 है, तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर छोटा नंबर, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर बड़ा नंबर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, याद रखना। Okay, in a 60 liter mixture of milk and water, ratio is 2:1. How much water must be added to make it 1:2? अच्छा, 60 लीटर मिक्सचर में मिल्क और वाटर 1:2 में है, नहीं सॉरी 2:1 में है, तो 60 लीटर को 2:1 में बांटोगे तो आई थिंक 2/3 इज 40 लीटर एंड 1/3 इज 20 लीटर। क्या मैं ये करके दिखाऊं और इट इज फाइन? 2/3 ऑफ 60 40, 1/3 ऑफ 60 20, तो मिल्क 40 लीटर हो गया और वाटर 20 लीटर हो गया। कितना पानी मिलाया जाए? सिर्फ पानी मिलाना है भाई, टू मेक द रेशियो 1:2। अब आप चाहते हो ये 1:2 हो जाए, नया रेशो 1, तो मिल्क तो मिलाना ही नहीं है। तो 1 के करस्पॉन्डिंग अगर ये 40 लीटर है तो फिर 2 के करस्पॉन्डिंग इसे 80 लीटर होना पड़ेगा, क्योंकि यू आर नॉट एडिंग मिल्क ना, यू आर नॉट एडिंग मिल्क। तो अगर 1 का रेशो 40 को करस्पॉन्ड करेगा, अगर 1 का रेशो 40 को करस्पॉन्ड करेगा तो 2 का रेशो को फिर 80 करस्पॉन्ड करना चाहिए। तो 20 लीटर में कितना पानी मिलाया जाए कि 80 हो जाए? 60। 60 इज द करेक्ट आंसर। बेसिक से ही हो गया, बेसिक से ही हो गया। और भी बहुत सारे आसान आसान मेथड में बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आप पानी मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो? यू आर एडिंग वाटर, तो आप मिल्क को कांस्टेंट कर सकते हो। मिल्क को कांस्टेंट, सर पहले मिल्क हुआ करता था, पहले मिल्क होता था 2/3 ऑफ 60 लीटर, है ना? पहले मिल्क होता था 60 लीटर, और अब जो वॉल्यूम होगा वो 60 + x हो जाएगा, और अब मिल्क होगा
1/3 ऑफ 60 प्लस एक्स लीटर। भाई वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना, चाहे पानी मिलाओ चाहे मिल्क मिलाओ। तो अगर आपने पानी भी मिलाया तो टोटल वॉल्यूम तो 60 प्लस एक्स हो जाएगा। सो 120 इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स, एक्स कम्स आउट टू बी 60। कैसे भी कर लो भाई, मैंने यहाँ पर क्या किया, मिल्क को कंजर्व कर दिया कि मिल्क जो आप पानी मिला रहे हो उससे रेशो बन जाएगा। ग्रेट। डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ डिजिट्स देखा जाता है। क्या देखा जाता है? सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स को देखते हुए आप अवॉइड 9 कर सकते हैं, बिकॉज 9 जो एडिशन होता है उससे बस वैल्यू का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, इफेक्ट कुछ नहीं आता। तो आप अवॉइड 9 कर दो। सर 5 6 9 अवॉइड 6 3 9, इसका इफेक्टिव सम 3 बचा। इज इट डिविजिबल बाय 9? नहीं। व्हाट आई सेड कि अवॉइड 9 करने के बाद जो बच जाए बस वही देखना है। सर 6 3 9, 7 प्लस 2 9, इफेक्टिव सम 5 बचा, नॉट डिविजिबल बाय 9। अवॉइड 9, 4 प्लस 5 9, है ना। 6 प्लस 7 13 प्लस 8 21। इज इट डिविजिबल बाय 9? नो। अवॉइड 9, अवॉइड 9, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट, ये कौन से नंबर दे रखे हैं भाई? अवॉइड 9, अवॉइड 9 के बाद बच रहा है 6। 3 बचा पहले में, 5 बचा सेकंड में, 21 बचा, 21 बचा। व्हाट डू यू से? नन ऑफ देम इज डिविजिबल बाय 9। ऐसा कैसे हुआ भाई? है ना, I have not proofread it, है ना, I have not proofread it. However, this is divisible by 3. Divisible by 3 में ये भी आ जाएगा, divisible by 3 में ये भी आ जाएगा, divisible by 3 में ये भी आ जाएगा, but divisible by 9 में ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। तो sum of digits आप कर सकते थे। However, if you are not like, अगर आप चाहते हैं कि पूरा पूरा सम करें फिर आंसर आ जाएगा, तो यू कैन ट्राई इट, है ना, वो नहीं आएगा। जैसे कि आपने कहा 6 5 11 4 15 18 19 20 21, 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 13 16 4 20, 21 22 23, 23 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 15 30, 30 is not divisible by 9। 9 plus 3 12, 14 15, 15 plus 9, 15 plus 9 24, not divisible by 9। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 9 नहीं। The product of two numbers is this, their LCM is, what is their LCM? दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके LCM इंटू HCF के बराबर होता है। दो नंबर का प्रोडक्ट उनके LCM इंटू HCF के बराबर होता है। ये हमें दिया गया है। HCF is 15, what is their LCM? 15 1 जा 15, फिर 15 1 जा 15 के बाद 52, तो 15 3 जा 45, फिर 75 बचेगा, 15 5 जा 75, 135 is the correct answer. So what is the takeaway from here? The takeaway from here is कि n1 into n2 is equal to LCM into HCF। दो नंबर का प्रोडक्ट उनके LCM into HCF के बराबर होगा। n1 into n2 is equal to product of their LCM into HCF। बहुत ही सेटर क्वेश्चन आ जाए तो फोड़ देना, ठीक है। सम ऑफ एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 50। ओके, अभी 50 है। 5 साल पहले मदर वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ डॉटर। अच्छा, अभी अगर m है और डॉटर की d है, तो 5 साल पहले मदर की m-5 रही होगी, डॉटर की d-5। 5 साल पहले मदर की 5 रही होगी और डॉटर की d-5, और मदर की जो एज थी वो 7 टाइम्स ऑफ द डॉटर थी, और प्रेजेंट में इन दोनों का सम 50 है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। एक तो प्रेजेंट में उनका सम 50 है, और दूसरा 5 साल पहले एक इक्वेशन बना दी
कि 5 साल पहले मदर वुड बी m-5, डॉटर वुड बी d-5। यहां से कोई रिलेशन निकल के आएगा, m-5 इज इक्वल टू 7d-35, m-d इज इक्वल टू -30 और 7d-m इज इक्वल टू 30। 7d-m इज इक्वल टू 30 एक रिलेशन आ गया। मदर बतानी है ना, मदर की एज बतानी है, तो वी विल ट्राई टू रिप्लेस, वी विल ट्राई टू, एक दूसरी इक्वेशन अपने पास ये पड़ी हुई है, तो मदर की एज बतानी है तो हम डॉटर को रिप्लेस कर देते हैं। वी आर रिप्लेसिंग डॉटर एज 50 माइनस मदर, वी आर रिप्लेसिंग डॉटर एज 50 माइनस मदर, जिससे कि हम एक ही इक्वेशन में आंसर ले आए। 7 5 जा 35, 350 माइनस 7m माइनस m is equal to 30, 320 is equal to 8m, m comes out to be 40, mother comes out to be 40। what is the age of mother? 40, the age of mother is 40। ठीक है, अगेन बेसिक परसेंटेज का प्रॉब्लम। सो मतलब the way the way we solve IPMAT Indore question today is a very different experience of solving very basic questions, but बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नया लग रहा है, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। जनरली वी यूज टू whenever it comes to IPMAT Indore, long concepts, long big things, big algebra, big geometry, but today I am liking a lot by some discussing very very minute things and very minute points, है ना। So side of square is increased by 10%, what is its area? तो आपको पता है एरिया जो होती है वो साइड का स्क्वायर होती है, बट आप फिर 10 का स्क्वायर मत कर देना, ऑप्शन है वो गलत है लेकिन, ठीक है। तो क्योंकि सक्सेसिव इंक्रीज लगेगा, क्या लगेगा? सक्सेसिव इंक्रीज। जैसे अगर ए में 10% का राइज है तो ए स्क्वायर में हमें बेसिकली इसको ऐसे देखना होगा कि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, और जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज में नेट चेंज देखना है तो इट इज फ्रॉम दैट फॉर्मूला ओनली कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। तो आपने कहा सर पहली साइड में भी 10% का चेंज, दूसरी में भी, तो इट इज 10 इंटू 10/100, 21%, 21%, बिकॉज साइड में चेंज है अपना। अच्छा देखो एक और तरीका बताता हूँ, अगर ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको ये देख लो कि सर साइड जो है उसमें 10% का इंक्रीज है, तो 10% का इंक्रीज इज इंक्रीज ऑफ 1/10, तो साइड 10 से 11 हो गई है। साइड हैज बिकम, इन द रेशियो इट हैज बिकम 10 to 11, इन द रेशियो इट हैज बिकम 10 to 11 बिकॉज यहाँ पर एक का इंक्रीज है 10 के ऊपर, तो 10 से 11, तो साइड स्क्वायर सर 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो जाएगी, सो 100 से 121 हो जाएगी। हाउ मच इज द इंक्रीज? 21%, बिकॉज एरिया साइड स्क्वायर ही तो होता है, तो एरिया में क्या चेंज है? एरिया विल बिकम 100 to 121, 21% is the correct answer, 21% is the correct answer। Let's move on। 50 लोगों में 30 लोगों को टी पसंद है, 25 लोगों को कॉफी पसंद है, 10 लोगों को दोनों। जो इसके बाहर हैं उन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। देखते हैं फिर, टोटल 50 है, तो अगर ये 10 ये टोटल 30 तो ये 20, टोटल 25 ये 10 तो ये 15, इसका मतलब 20 प्लस 10 प्लस 15, 20 30 40 45 लोगों को कुछ ना कुछ जरूर पसंद है। 45 इज कमिंग इन द यूनियन, 45 इज कमिंग इन द यूनियन, मतलब कि 45 पीपल आर देयर जिनको या तो ओनली टी पसंद है, ओनली कॉफी पसंद है, या फिर बोथ टी एंड कॉफी। ओनली टी हो गए, ओनली टी हो गए 20, ओनली कॉफी हो गए 15, और बोथ टी एंड कॉफी हो गए 10। तो 45 पीपल आर देयर जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, एक दो से ज्यादा। so, जो बचे हुए लोग हैं 5, they does not like anything, so how many like neither? ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं? there are 5 people who does not like anything। next,
फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। क्या सीरीज है भाई, देखना जरा एक बार। 2 6 12 20 30। क्या लग रहा है इसको देखकर? कॉन्जिक्यूटिव नंबर की सीरीज लग रही है मुझे तो ये। 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6, तो 6 into 7 आ जाएगा अगला आंसर, 42। 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4, 4 into 5, 5 into 6, 6 into 7। सीरीज के क्वेश्चन में मल्टीपल लॉजिक्स भी चल जाते हैं। जैसे देखना कितने सारे लॉजिक्स निकल के आ रहे हैं। इट इज 1 square plus 1, इट इज 2 square plus 2, दिस इज 3 square plus 3, ये 4 square plus 4, this is 5 square plus 5, so next number is going to be 6 square plus 6। किसी भी लॉजिक से जाओ भाई, यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स, यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स। कुछ भी क्लिक कर जाए आपको, आपका काम बन जाएगा। अ शॉपकीपर सेल 2 आइटम एट 990 ईच, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है। वन ही गेन्स 10%, अनदर ही लूजेस 10%। अच्छा, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन है कि दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर X% का प्रॉफिट, दूसरे पर X% का लॉस, तो ओवरऑल जो होता है वो x² by 100 का लॉस होता है। ओवरऑल जो होता है वो x² by 100 का लॉस होता है। इन केस ऑफ सेलिंग प्राइस सेम, if there is a profit of X% on one and there is a loss of X% on another, then overall profit loss is x² by 100 नेगेटिव का साइन। नेगेटिव का साइन मतलब, नेगेटिव का साइन मतलब overall it is a loss, overall it is a loss, so it is minus of 10 का square by 100, so -1%, -1% is indicating 1% loss। -1% क्या इंडिकेट कर रहा है कि 1% का लॉस होगा, 1% का लॉस होगा। गॉट इट? अगर आप ऐसे नहीं करते तो रेशो से भी हो जाता। फॉर एग्जाम्पल पहले पर आप कहते 10% का प्रॉफिट, तो 10 की चीज 11 में बेची गई। दूसरे पर आप कहते 10% का लॉस, तो 10 की चीज फिर 9 में बेची गई, है ना? 10 की चीज 9 में बेची गई, 10% का लॉस तभी तो होगा। दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है, तो आप फिर रेशो बैलेंसिंग करते हैं, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करके, यहाँ 11 का मल्टीप्लाई करके अपडेटेड आ जाता है। 90 का आर्टिकल 99 में गया, और फिर इनकी जो प्राइसेस है वो 990 दे रखे, इनकी जो प्राइसेस है वो 990 दे रखी हैं। तो ओवरऑल अगर मैं रेशियो के हिसाब से ही चलूं, तो ओवरऑल जो रेशियो के हिसाब से 200 का सीपी हो जाएगा और 198 का एसपी हो जाएगा, तो 2 का घाटा 200 के ऊपर। सिर्फ रेशियो में चल रहा है ना, बिकॉज हमें परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज बताने के लिए तो रेशियो ही सफिशिएंट होता है, परसेंटेज बताने के लिए तो रेशियो ही सफिशिएंट होता है, तो बस मैंने रेशियो में ही कर दिया। नेक्स्ट, if the sum of two positive number is 25, their product is 144, डायरेक्ट दिमाग में आ रहा है क्या? डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स बताना है, पॉजिटिव मतलब मैग्नीट्यूड। या तो क्लिक कर जाए, हमको बताओ 144 कैसे कैसे बन सकता है। मुझे तो क्लिक कर गया 16 into 9, मुझे क्लिक कर गया 16 into 9, 16 into 9 144 होता है, 16 + 9 is 25, so 16 - 9, व्हाट डू यू से, 7 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जब क्लिक नहीं करेगा तो आपको इसको याद करना है कि सम ऑफ टू नंबर का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ टू नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन इनके नंबर्स थोड़े बड़े बड़े हो जा रहे हैं, तो 25 का स्क्वायर ये हमें बताना है, और ये हमें पता है 625 माइनस, देखना भाई 4 चौक 16 के बाद 16 एक 17, 576 इज इक्वल टू x स्क्वायर।
24 यहाँ से बच गया, 25 वहां से बच गया, 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव डिफरेंस बताना है, पॉजिटिव डिफरेंस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बहुत कमाल का है, और वैल्यू पुटिंग डायरेक्टली सोच सकते हो तो बहुत ही अमेजिंग है। सर 16 + 9, 16 × 9, तो 16 - 9, गुड वन, गुड वन, ठीक है। So this is guys, I have taken the first session for SAT. We'll try to take some more sessions, है ना, where we will be doing this important expected problem solving. It is going to be a totally different experience apart from IPMAT Indore, because IPMAT Indore every question is challenging. Here few questions are basic, requiring some basic knowledge, requiring some basic concept. Uh, just a basic understanding of the topic is sufficient to get some good marks. However, in the upcoming sessions, we will try to increase the difficulty bit. We will try to take it to LOD2, LOD3, and so on. Okay, so I hope you have enjoyed the session. If you have enjoyed the session, please do let us know in the comment box as well. And do not forget to like the session if you liked it. All the very best. See you in the upcoming sessions.